Hello students, welcome to Nahar Global School online video classes. This is class 6th maths class. Now today in this class we will start with question number 3rd of exercise 2.2 because in previous class we have completed till question number 2nd. Okay, so let's start question number 3rd. So question number 3rd is find the value of the following. Means you have to find the value of each of the following. In question number 3rd, what you have to do? You have two terms or three terms, and in that terms you have to take one number as common. Okay, so let me explain you how you will do it. This A part is 297 into 17 plus 297 into 3. Okay. Now students, as you can see that terms are separated by plus or minus. Means in between these two numbers there is multiplication sign. So this is one term only. Then this plus means this is second term because both the terms are separated by this plus sign. Now students, in these two terms if you find and observe carefully, you will see that 297 and 297 is common in both these terms. So we can take it out using this property. This is distributive property, students. Okay, using this property this question will be more easier. How? First we take 297 as common. Now here 17 remains and in this term 3 remains, but in between 17 and 3 we have plus sign. Okay, so 297 as it is, 17 plus 3 is 20. Okay, 297 into 20 is, now when you multiply these you found 0, 7 2s are 14, 4 carry, 9 2s are 18 and 9, 1 carry, 2 2s are 4 and 5. 5940. This is your answer. Okay, this is your answer. सबसे पहले क्या किया? 297 कॉमन निकाल लिया, यहाँ 17 बचा, यहाँ 3 बचा. In between there is plus sign. When we add 17 and 3, 20 and multiplied by 297, this is 5940. Okay, कुछ नहीं किया है, बस कॉमन निकाला, फिर जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस थे उनको लगा के आंसर निकाला. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू बी पार्ट. ओके, सो बी पार्ट इज 54279 into 98 into 92 plus 8 into 54279. Now students, when you observe these both the terms carefully, you will find that this and this is common in both the terms. Now students, when you took this common, there is 92 remains and plus 8. 92 plus 8 is 100. 92 plus 8 is 100, and when you multiply 100 to this number, your answer will 5427900. Okay students, so this question is homework for you. Okay, so this second part, that is B part, is same as I did A part. Okay, you have to do the B part in a similar manner as I did A part. Okay, so this B part is homework for you. Now let's proceed to C part. Let's proceed to C part. Now students, this C part is 81265 into 169 minus 81265 into 69. Now again in this question there are two terms
and 81265 and 81265 is present in both the terms, means we can take this as common. 81265 हमने कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, सो यहाँ बचेगा 169 एंड माइनस साइन, यहाँ बचेगा 69. ओके, नाउ व्हेन वी परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन, 169 में से 69 गए तो 81265 इंटू 100, बिकॉज जब हम माइनस करेंगे तो 100 बचेगा. ठीक, नाउ 81265 इंटू 100 इज 8126500. दिस इज योर आंसर. ओके, दिस इज योर आंसर ऑफ सी पार्ट. सी पार्ट भी सेम है, बस हमने बीच में सब्ट्रैक्शन दे रखा है इन प्लेस ऑफ एडिशन. ओके स्टूडेंट्स, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन दे रखा है, बस हमें सब्ट्रैक्ट करना है और इस नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स प्रोसीड टू डी पार्ट. सो दिस डी पार्ट इज 3845 into 5 into 782 plus 769 into 25 into 218. ना स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखेंगे तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. जब ऐसा कभी केस आ जाए कि जब दोनों टर्म्स में कोई भी चीज़ कॉमन ना निकले, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस टर्म में या इस टर्म में कोई एक ऐसा नंबर हो जिसको तोड़कर अगर कोई टर्म कॉमन निकल पाए तो हम निकाल लें. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ 25 है, 25 को मैं 5 इंटू 5 पे लिख सकती हूँ. यहाँ भी 5 प्रेजेंट है, यहाँ भी 5 हो जाएगा. ओके, सो सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इस 25 को हम स्प्लिट करके 5 इंटू 5 लिखेंगे. सो फर्स्ट राइट दिस टर्म एज इट इज, 3845 इंटू 5 इंटू 782. नाउ प्लस 769 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 218. ओके, नाउ अब आप देखेंगे कि यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है, बट यहाँ तो 2 5 है, यहाँ 2 5 है. इसका मतलब अगर हम चाहें कि जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद दिस, यू विल फाइंड द आंसर. You will find the answer is, when you multiply these two numbers, you will find the answer is 3845. Why? Because 9 5s is 45, 4 is carry 5. Now 6 5s are 30, then 30 plus 4 4, 3 is carry, 7 5s are 35, 35 plus 3 38. Okay, so when you multiply these two numbers, 3845 comes. Now this 5 remains as it is and this 218 also remains as it is. अब देखेंगे तो दो नंबर्स हमें इन दोनों टर्म्स में से कॉमन मिल जाएंगे, 3845 इंटू 5 और 3845 इंटू 5. तो हम दोनों को बाहर निकाल लेंगे. 3845 इंटू 5, यहाँ बचेगा 782 और यहाँ बचेगा प्लस में 218. ओके, नाउ अब क्या देखेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1000 और ये एज इट इज़ चलने देंगे. 3845 इंटू 5 इंटू 1000. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू, यू विल फाइंड 5 5s are 25, so 2 carry, 5 4s are 20 plus 2 22, 2 again carry, 8 5s are 40 plus 2 42, 4 carry, 5 3s are 15 and 4 9 19. Okay, 19225. When you multiply these two, 19225 comes. Okay, and this multiplied by 1000. तो अगर किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो वो नंबर लिख के पीछे 3 ज़ीरोज़ और लगाने हैं. ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. क्या किया हमने इस क्वेश्चन में,
इस क्वेश्चन को हमें और सिंपल बनाना है, ऐसे कि हम और इजीली मल्टीप्लिकेशंस और एडिशन कर पाएँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखा कि यहाँ कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो इस 25 को हमने 5 × 5 में स्प्लिट करा। पर सिर्फ 5 कॉमन निकालते तो भी हमको इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई, इस नंबर का 5 से और इससे बहुत भारी पड़ता बेटा। तो इसलिए हमने क्या किया, इतना बड़ा मल्टीप्लाई हमें ना करना पड़े इन दो नंबर्स का, इस नंबर का और इस नंबर का, तो हमने क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखा एक 5 से, क्योंकि अगर 5 कॉमन निकलेगा भी तो भी एक ही 5 निकलेगा। इस एक 5 को हम मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा किसी ना किसी नंबर से। तो हमने पहले मल्टीप्लाई करके देखा इस नंबर से, तो हमें क्या मिला, 3845। अब अगर 3845 मिल गया तो यहाँ भी 3845 ही है और यहाँ भी 3845 मिल गया, इनटू में 5 है, यहाँ भी इनटू में 5 है, तो हमने इस पूरी टर्म को ही कॉमन निकाल लिया। अब जब ये पूरी टर्म यहाँ कॉमन आ गई तो इस टर्म में बचा 782 और इस टर्म में बचेगा 218। इन बिटवीन देयर इज प्लस साइन। व्हेन यू ऐड दीज बोथ यू विल फाइंड द आंसर इज़ 1000। ओके, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1000। इन दोनों को मल्टीप्लाई एज इट इज़, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और 3 zeros एज इट इज़, ये आपका आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 3rd. This completes our question number 3rd. Now from question number 4th we will do in next class. Till then, keep studying students and do submit me your homework daily. Today's homework is B part. Today's homework is B part. Question number 3rd, B part. Okay. So do submit me your homework daily and keep studying.